Good morning to all of you. सरो कोमची 10:20 में आपके सामने अने जीरो प्लेटू में जीरो वैली में the beautiful valley of Arunachal Pradesh. It is considered as the second Switzerland of our country. So it's my privilege enough to be here with you all. Thank you so much, dear media fraternity friends, and all the my beloved, loving Jiroga. Num ka nga ane aba nga aba baro nga ami nga bam nga amu nga nyamu mane every relationship nuno munaro ano ayapa chindo ngonun ka awnyim so ke ngun ke luar Subansiri district ke sisi sumolo kolo damudane ke panyer pamupine a hal mate ko dango luar Subansiri district ke ngo nun ka o nyijir pa o nyim pasandona suro konchi nga ka jiro so ane meaning si halake ngun ka 17-0 constituency si member of legislative assembly seat uncontest dukma uncontest liko एकता टेक्निकल प्रॉब्लम हला आदो के रूलिंग पार्टी के टिकट के बिने कैंडिडेट अनकॉन्टेस्ट लिको सो ओपोजिशन युक माल्यो मुनु माने सो रैली पात्रे मीटिंग पात्रे मला को मा हलामी आता हेनु मी हेंदो हेंस जालो मोलो माने इंतो ngoya ago dalin telaki ajo ato ngunu ala lusa ngoya susa ala माने इचे लुला माल्यो ngo o jabo nutan jalo ngka o henjumi ngo nutan pa henduna nempa senya nya ngo 2024 so member of parliament candidate pa ngo stand mudomi hkami o through this media platform mane mularu mi ngo gong eluko pa hen la ke ngo susro so adone a hopa ngo ngka armian to ko sitel nuno ano aya pa chindo ngka jiro valley ka pura ngka family member ata ngka aba kolo so mo dane sis ke purana apex bank building atre ngka aba ka mene a so mo jiro kami padas ne mo ka armian let toko tatam a ngo toko tatam ka o ngunu original village ngun ke lemba talo lemba dus ne o jalo mo lo kami o into ngoya la tola purusalio mane shifting la ho ke du tola ngunu mane ngo toko tatam ka o nun ka pongko so dun bo ha police o tere ngo 2 साल go dato ke a ngun ka ha poli ka jiro का ईच एंड एवरी लेम्बासिस के बामी मिची से स्टार्ट करके पाइन ग्रुप तक पहुंच के उसका बाद वापस रो होके मानीपोलियांग होके तालीवेली होके हम लोग का हापोली तक वापस पहुंच के न ग्रीवेंसेस गदोना न प्रॉब्लम गदोना वो चिंदो के स्पेशली हमारा जीरो जो एक कॉम्पैक्ट एरिया है बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है चारों तरफ 4 कॉर्नर पहाड़ों से सराउंडेड है और बीच में छोटा सा वैली है तो इस वैली में हम लोग का कॉम्पैक्ट जोन है और हमारा पॉपुलेशन दिन ब दिन रैपिडली बढ़ता जा रहा है तो पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ता जाने का वजह से हमारा थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं एक्सटेंशन करने के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम है इवन देन द पीपल ऑफ जीरो आर वेरी ब्यूटीफुली दे आर मैनेजिंग हाउ टू लिव टुगेदर विथ ए ब्यूटीफुल मैनर तो हम सिसी कंगुन के जे पालू दो कोदा एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट सो के रिप्रेजेंटेटिव एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द पर्सन हु इज कवरिंग ऑलमोस्ट 15 to 16 districts and who is the representative of 33 MLA constituencies. One has to be very much responsible person. One has to be very much sensible one so that he or she may place the grievances of the each and every constituencies, whatever the issues are there, which has to be noticed, which has to be focused in the national level, in the parliament house. That is the main issue. So इसलिए ngो माने मलारू मिंगो नारू नून मिंगो मलारू मिंगो रिक्वेस्ट मुदो के at least सिन्यागा आया सोंगुनु member of parliament mi इचे अनो आया पा हेंदी गदोला का दी गदोला हका मी बो ह मो पारिकिंदो आ पारिकिमा उनका issues mi उनका grievances mi into parliament to national level o Indian parliament house of placement मला किंदो आ मला किमा जिजे mi Indian government te grant mene memane mi that is their part but at least उनका representative so का vocal पे लगे मो का लुजु हेंजो आया पे लगे हो at least मो background में मो अनो आया पा चिंदो लगे हका मी मिंगुनु काला हेनला सिnya anya so ngunu member of parliament mingunu elect mo ko da ano aya kindo ngo hala hendo ke a ho pa ngo ngka eje ngo one of the aspiring candidates ngo toko sital ngo nun ka bam sital ngo numi hendo na humi ngo oi lukoto pasi si hendo ke a si ngka manifesto si hala do ke ngo I am standing as a member of parliament candidate from the GSP party
GSP means now what is the GSP? गन सुरक्षा पार्टी का इलेक्शन सिंबल है टॉर्च लाइट के। हाँ, सिंह का इलेक्शन सिंबल है टॉर्च लाइट। और का सिका पार्टी के बैकग्राउंड को थोड़ा बताएगा, उसके बाद में आई विल कम टू द पॉइंट वाइज एंड देन लेटर ऑन इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और रिगार्डिंग एनी ऑफ द मेरा कोई भी अगर इश्यूज़ को लेके होगा तो देन यू आर मोस्ट वेलकम फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड आउट माई व्हाट इज़ द एग्जैक्टली GSP। अरुणाचल प्रदेश लोकसभा इलेक्शन मैनिफेस्टो 2024 गन सुरक्षा पार्टी अरुणाचल प्रदेश। गन सुरक्षा पार्टी मीन्स द एफिलिएशन फ्रॉम वेयर आई एम स्टैंडिंग। गन सुरक्षा पार्टी रजिस्ट्रेशन नंबर 56/309/201920/PPS1 which was existence on 20th September 2020 got registration as a regional political party from Assam in Election Commission of India। सिका पार्टी में रजिस्टर मन देते 20 September 2020। GSP stands for a democratic secular society wedded to equality, social justice, as well committed to preserve the unity and integrity of Arunachal Pradesh state, nation as a whole। GSP stands for the protection of indigenous tribal people and their land, traditions, cultures, and the natural resources of the people of Arunachal Pradesh, nation as a whole। In social sector, 1. Corruption free state in Arunachal Pradesh to all sector. That is my agenda number 1. If I elected as a member of parliament, what I have to do? It is written here. Number 2. Proper monitoring and services of government funds provided by central government to the state। टोटली जितना भी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स होता है, जो भी प्रोजेक्ट्स होता है, वहाँ से जो भी फंड्स यहाँ एलोकेट होता है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, स्टेट को, उस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाएगा, जो आज तक किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने नहीं किया है। दैट डिफरेंस आई वांट टू डू कि वहाँ से बोलता है, बहुत बड़ा बड़ा बात बोलता है कि फंड्स वहाँ से इतना इतना 1000 करोड़ स्टेट बजट को एलोकेट किया है, अरुणाचल स्टेट को इतना दिया, वो अलना फलना फंड्स गिनाते रहता है, लामसाम 5000 करोड़, 6000 करोड़, 50,000 करोड़, बहुत कुछ बोलता है, बट उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन यहाँ ग्राउंड जीरो लेवल पे होता है ना नहीं, वो देखभाल करना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि इफ़ आई एम रिप्रेजेंटिंग एज ए वॉइस ऑफ 33 नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, देन इट इज़ माई मॉरल ड्यूटी, माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी to monitor the entire my constituencies whether it is really implemented or not and what is the outcome, उसका रिजल्ट क्या है, जो फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको दिया है उसका बेनिफिट्स लोगों को कितना मिल रहा है, पब्लिक को, that has to be strictly monitored by the member of parliament, respective member of parliament। Number 3, empowerment of women would be enacted providing due shares for the women in all the urban and rural area self bodies, protecting survival and development of girl children would be ensured। जितना भी हमारा महिला विभाग है, स्पेशली वीमेन जो हमारा जितना भी नारी जाति है, उन लोगों का खास ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि नारी का हमारा समाज में एक अपना एक दर्जा होता है, अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। तो नारियों का प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्पेशली इशूज आर देयर हाई इन द एयर दैट कि वुमेन रिजर्वेशन 33% लागू करेगा बोल के लोकसभा से क्लियर हो गया, राज्यसभा से क्लियर हो गया, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर उसको वस्ताक कर दिया कि पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद सेंसस होगा एंड देन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो इसको इफ़ आई इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम दिस वन अरुणाचल वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, देन ये मेरा सबसे पहला प्रायोर ड्यूटी रहेगा कि वहाँ पहुँच करके वुमेन एम्पावरमेंट का ऊपर में मैं चर्चा करूं और 33% रिजर्वेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसने फाइल को वहाँ पे स्टार्ट कर दिया, विदाउट डिलिमिटेशन प्रोसेस ऑल्सो, विदाउट सेंसस ऑल्सो इट कैन बी इम्प्लीमेंट। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि आप उसको फाइल को वहाँ पे स्टार्ट करके रख देना, कि कंडीशन डालना कि पहले डिलिमिटेशन करेगा फिर सेंसस में जाएगा उसके बाद जाके ये इम्प्लीमेंट होगा बोलना। तो भारत की सरकार से मैं अपनी तरफ से एज ए women representative, because I am the lone lady candidate from this Western Parliamentary constituency, particularly in this election session 2024. Everybody, they are all gents, but it's only me who is standing from the women background, women category. So इसलिए मेरा सबसे पहला फोकस रहेगा कि
वुमेन को कैसे प्रोटेक्शन देना है, वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे अपलिफ्टमेंट करना है, गर्ल चाइल्ड को कैसे सेव करना है। सुकन्या समृद्धि schemes are there, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ schemes are there, many more schemes are there which has been launched by the central government for the welfare of girl child, for the future of girl child। तो वो यहाँ हमारा स्टेट में वाकई में कितना तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, और उसका बेनिफिट हमारा गर्ल चाइल्ड को कितना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सो मेनी वुमेन्स आर देयर दोज हु आर विक्टिम ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, सो मेनी वुमेन्स आर देयर दोज हु आर द विक्टिम ऑफ मल्टीपल मैरिजेस दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ मी। मुझे देखभाल करना पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करना पड़ेगा, और जितना हो सके वुमेन के लिए एक अच्छा पॉलिसी, एक अच्छा लॉ एडॉप्ट करना पड़ेगा वुमेन सिक्योरिटी को लेकर के। सो माय फोकस विल बी वेरी मच प्रायोरिटी फॉर द वुमेन वेलफेयर, गर्ल चाइल्ड वेलफेयर। ये मैंने नंबर 3 में डाला हुआ है। नंबर 4 में अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम कोर्डियल रिलेशनशिप इज़ टू बी परमानेंट सोल्यूशन। आसाम और अरुणाचल का जो हमारा जो इंटरनल बाउंड्री डिस्प्यूट होते रहता है, हर बार मारपीट होते रहता है, हर साल में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से, जहाँ से आसाम का जितना पार्ट से अरुणाचल का सराउंडेड जुड़ा हुआ है, आसाम का हमारा जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उस पर भी एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। एज यू ऑल हैव सीन दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रूल्ड बाय बीजेपी पार्टी, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज़ रूल्ड बाय बीजेपी पार्टी, स्टेट ऑफ आसाम गवर्नमेंट इज़ रूल्ड बाय बीजेपी पार्टी। Both the governments, 3 of them are of same party, but still they just कि एक ऊपर से बताया गया है कि हमारा सोल्यूशन हो चुका है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, सेटलमेंट हुआ है बोला है, बट आफ्टर डेट पर्टिकुलर सिग्नेचर ऑल्सो, आफ्टर डेट पर्टिकुलर सिटिंग, उसके बाद क्या हुआ, तोराजान में क्या हुआ, आप लोगों ने देखा, सब ने देखा। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है, एक वायरस की तरह है, इसको भी परमानेंटली सेटलमेंट की ज़रूरत है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एक सेंसिबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये इशू को रेज करना पड़ेगा, टेबलिंग करना पड़ेगा, इसका परमानेंट सेटलमेंट के लिए सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, विच रियली आई एम डिटरमाइंड टू डू इट इफ़ आई इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम दिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसके बाद में आता है टू एंश्योर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन स्टेट। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी लोगों का कहना है कि द सो कॉल्ड पीपल दोज हु आर रूलिंग देयर इन द पावर, दे क्लेम देमसेल्फ दैट कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, रोड्स बन रहा है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड्स आ रहा है, ट्रांस अरुणाचल हाईवे बन रहा है, गांव-गांव में बहुत ज़्यादा PMGSY का रोड जा रहा है, और बहुत ज़्यादा हमारा PMKSY का स्कीम लॉन्च हो रहा है। उसके बाद में आपका JJM है, क्या क्या है, दुनिया भर का बात बताता है। तो ये जो आप ऊपर से बताते हो, ये ग्राउंड ज़ीरो में कितना तक रियलिटी में होता है? अगर होता है तो हमारा गांव-गांव में आज तक सड़कें पक्का क्यों नहीं है, और हमारा पास में वेल फैसिलिटेट वाला हॉस्पिटल नहीं है, हमारा पास में वेल फैसिलिटेट वाला 3D क्लासरूम वाला गवर्नमेंट सेक्टर से कोई स्कूल नहीं है। जितना भी इंस्टीट्यूशन से, स्कूल से, सारा प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर का है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और हर मिडिल क्लास फैमिली उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। गवर्नमेंट ऑलरेडी हमको इतना फंड्स दिया हुआ होता है, तो उस फंड्स का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्यों नहीं करता है? इसीलिए इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मैं कह रही हूँ कि मैं आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप लोग बनाइए। हेल्थ सेक्टर पे आते हैं। introduce modern facilities in the healthcare system to health department and to be induct super specialist hospitals and doctors। ये बहुत ज़रूरी है। हमारा यहाँ से पेशेंट जब भी बीमार होता है उसको बाहर रिफ़र कर दिया जाता है, निगरिम्स बोलिए, बेलोर बोलिए, एम्स बोलिए, कहाँ कहाँ। तो जो हमारा गरीब तबका का लोग होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली का लोग होता है, इतना दूर तक जाने के लिए अफोर्ड नहीं कर पाता है, और गांव वाला को तो बस्ती वाला को और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अपना जो हम लोगों का डोमेस्टिक जो लोकल हमारा प्रॉपर्टी होता है, मिथुन होता है, जो हमारा एनिमल होता है, उसको बेचना पड़ता है, या फिर ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स बेचना पड़ता है। किसी किसी का इतना प्रॉब्लम आ जाता है कि आपको अपना ज़मीन घर भी गिरवी में रख के बेच के हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना होता है। तो ये सारा फैसिलिटीज़ जो बाहर हॉस्पिटल में मिलता है, वही फैसिलिटी अगर हमारा स्टेट में मिले तो कितना लोगों का भला हो जाएगा, कितना लोगों का जान बच जाएगा। इसलिए मैं पर्टिकुलरली हेल्थ सेक्टर पे भी ज़्यादा कंसंट्रेट करके भारत सरकार से मैं निवेदन करूंगी, और वहाँ से एज ऑफ माई कैपेसिटी में कोशिश करूंगी कि जितना मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, जो टेक्नोलॉजीज़ है, जो भी हमारा मतलब एक्सपीरियंस डॉक्टर्स है, जो भी स्टाफ्स है, वो यहाँ प्रोवाइड किया जाए स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंदर, सो डेट कि गाँव से जो अंदर रिमोट एरिया से निकल के आते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। Provide pre-air ambulance services to BPL holders across the state through MP led fund। जो भी MP का लेड फंड होगा
वहाँ से मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट किसी और काम में अगर मैं कर भी पाऊँ नहीं भी कर पाऊँ, नंबर 1 में एम्बुलेंस सर्विसेज को फ्री करवाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि एम्बुलेंस ही एकमात्र सहारा है मरते हुए को बचाने के लिए। किसी भी एक मिनट बहुत कीमती होता है, किसी का लाइफ अगर खतरे में आता है तो उस पर मेरा पूरा जोर रहेगा कि जो भी MP लेद पांदाएगा उससे सबसे पहले हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गाँव में, रिमोट एरिया में मैं कोशिश करूँगी कि जो प्री एम्बुलेंस सर्विसेज है वो एक्टिव रहे, 24/7 एक्टिव रहे और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो जल्दी उसको हॉस्पिटल असिस्टेंस मिले। तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द हेल्थ सर्विसेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये मैं बोल चुकी हूँ। Into the education sector, introduce world-class infrastructure and teaching aids in education department and to provide highly skilled trained to teaching and non-teaching employee of the department। हमारा यहाँ डाइट होता है, डाइट का कोर्स करके लोग, एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि आप जितना भी ग्रेजुएटेड हो, जितना भी आपके पास में क्वालिफिकेशन हो, बट आपको डाइट क्लियर करके आना पड़ता है, तब आपको टीचिंग का प्रोफेशन में आपको जाना है। तो वो बहुत अच्छा है, वो चल रहा है, बट उससे भी ऊपर बढ़ चढ़ के हमको कोशिश करना ये पड़ेगा कि अपना टीचर्स को भी हम वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग उसको दिया जाए और बाहर से एक अच्छा ट्रेनर को बुलाया जाए और क्वालिटी एजुकेशन पे हमको एम्फेसाइज करना है, क्योंकि एजुकेशन इज़ द ओनली एसेट, एजुकेशन इज़ द ओनली वे, ओनली वेपन फॉर द बेटर फ्यूचर, फॉर द बेटर, हमारा आने वाला दिन, भविष्य के लिए, यंगर जनरेशन को। जहाँ शिक्षा नहीं वहाँ सब कुछ ख़त्म है, अंधकार है, शिक्षा है तो रास्ता है। इसीलिए इस पर मुझे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर मुझे मौका दिया जाता है तो इस पर मैं ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगी, ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगी। और मेरा विज़न क्या है, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर मैं इलेक्ट होती हूँ तो मेरा विज़न पे मैं आती हूँ। मेरे 10 विजन्स हैं। विज़न नंबर 1, सेपरेट हाई कोर्ट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये मेरा विज़न नंबर 1 है कि जो हमारा जो नाहरलगुन में जो हाई कोर्ट जो है हमारा अरुणाचल स्टेट का, वो परमानेंट बेंच है गुवाहाटी हाई कोर्ट का, वो अपना मतलब हाई कोर्ट नहीं है स्टेट का, गुवाहाटी हाई कोर्ट का साथ अटैच होके उसका एक बेंच है, जिस पे हमें कम्प्लीटली एक सेपरेट हाई कोर्ट चाहिए अरुणाचल स्टेट के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा लीगल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग रह जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा टेक्निकल रीज़न का वजह से जजेस को बाहर से आना पड़ता है, कोर्ट का डेट फिक्स हो जाता है, बट कभी कभी गाड़ी का ख़राब होने का वजह से या रास्ता का ब्लॉकेड होने का वजह से या कभी पे दंगा फसाद बंद कॉल हो जाता है, तो जजेस वो पर्टिकुलर डे में कोर्ट चलाने के लिए अपेयर नहीं हो पाता है, तो फिर नेक्स्ट डेट लग जाता है। इस तरीके से जस्टिस बहुत डिले हो जाता है। तो जस्टिस डिलेड इज ए जस्टिस डिनाइड। इसीलिए हमें फोकस करना है, भारत की सरकार से, हमें डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस से हमको ये मांगना पड़ेगा कि हमारा अरुणाचल प्रदेश को एक सेपरेट हाई कोर्ट की ज़रूरत है, जो सचमुच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो किसी भी हाल में उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकता है, ओवरलुक नहीं कर सकता है। नंबर 2 पे आती हूँ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ स्टेट एंड पार्लियामेंट सीट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नाउ दिस इज़ अ वेरी क्रूशल टॉपिक एंड इट इज़ द नीड ऑफ आवर, बिकॉज हमारा अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है कॉम्पैक्ट होता जा रहा है। लाइक जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ 17 ये एक सिंगल MLA कॉन्स्टिट्यूंसी है विच इज़ कवरिंग नियर अबाउट 40,000 वोटर्स। It's not a joke. Whereas in Nari-Koyu constituency there are only 4,500 voters. एक 4,500 का एक MLA कंस्टिट्यूंसी हो सकता है, यहाँ 40,000 का कैसे एक MLA कंस्टिट्यूंसी होगा? ये सोचने वाला बात है और इसको 20 साल से पेंडिंग रखा गया है। डिलिमिटेशन कमिटी बनाया गया, उसके बाद में वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेवल में टेबलिंग हुआ, सिग्नेचर हुआ, तो हमारा जो भी माननीय ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ मौजूद थे, उसने वहाँ पे बस सिग्नेचर कर दिया, उन लोगों ने जो डिसीजन दिया उस पर हामी भर दिया। ऐसा नहीं है। स्टेट को क्या ज़रूरी है वो वहाँ फेस करना पड़ता है पार्लियामेंट हाउस में, भारत सरकार का सामने में बात को बताना पड़ता है। जैसे 0 हो गया 40,000 वोटर का एक सिंगल MLA सीट, वैसे ही 13 ईटानगर हो गया 70,000 का एक सिंगल MLA सीट, जो कि टोटली इनजस्टिस है, अनफेयर मीन्स है, हो ही नहीं सकता है। और इसको तो हमको कैसे भी करके, अभी हमारा फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, वो कहता है कि 2026 में ऑटोमेटिकली हो जाएगा बोलते हैं। 2026 में ऑटोमेटिकली कैसे होगा? आपको अगर पब्लिक लीडर बनाता है तो यू आर द पब्लिक्स वॉइस, यू आर द पब्लिक्स रिप्रेजेंटेटिव, यू हैव टू प्लेस द पब्लिक्स ग्रीवेंसेस, और जो जरूरी है वो आपको बोलना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा।
भारत की सरकार के सामने इंडियन पार्लियामेंट हाउस में आपको टेबलिंग करना है चीज़ों को। टेबलिंग किए बगैर वेट करेगा कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और वहाँ से मना करके रखा, यूपीए का समय में ब्लॉक करके रखा, ये लेम एक्सक्यूजेस देना नहीं चलेगा। जहाँ तक मुझे लगता है, आई हैव टू ट्राई माई बेस्ट, मुझे कोशिश करना पड़ेगा। एज ए मुझे लोगों का मैं वॉइस बनती हूँ, लोगों का अगर आवाज़ हूँ, लोगों के लिए मैं खड़ा हूँ, लोगों का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आई एम टेकिंग एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मोर देन 4 to 5 lakhs पॉपुलेशन। 4-5 लाख लोगों का आवाज़ बन के अगर मुझे पार्लियामेंट हाउस में बैठना है तो मुझे सीरियस इशूज़ पर, सीरियस मुद्दों पर चर्चा करना पड़ेगा, और भारत की सरकार से मुझे मांग करना पड़ेगा कि नहीं, हमारे यहाँ ये और डिले नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली इन MLA सीट्स, इवन इन द MP सीट्स ऑल्सो इट इज़ रिक्वायर्ड। बिकॉज देखिए हमारा एरिया बहुत, जो जोग्राफिकल टेरेन है बहुत बड़ा है, बिल्कुल ही मतलब डिस्ट्रिक्ट बहुत दूर दूर में सटा हुआ है, और सिर्फ हमारा पास 2 लोकसभा सीट है। 2 लोकसभा सीट कवरिंग नहीं कर पाता है अभी भी कम से कम मेरा 40% एरिया अभी भी कवर करना बाकी है, 60% जैसे तैसे मैं चल रही हूँ। तो इस तरीके से हमें लोकसभा सीट पे भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा, और खास करके हमारा 17 का तो टोटली इसको तो डिनाई करने का जगह ही नहीं है, इसको तो बात करना ही पड़ेगा। 13 ईटानगर 17 को तो कंपलसरी बात करना पड़ेगा, एज वेल एज लोकसभा सीट के लिए भी चर्चा करना पड़ेगा। तो मुझे इलेक्ट करता है, मुझे आप सब ब्लेसिंग का साथ में वोटिंग देता है, अपना MP बनाता है, तो मेरा टॉप प्रायोरिटी रहेगा कि सबसे पहले मैं इस पर अपना एप्लीकेशन डालूँ, पेटिशन डालूँ, पार्लियामेंट हाउस में पहुंचने के साथ साथ पार्लियामेंट में इस पर चर्चा करूँ कि कम से कम इसको और लेट ना किया जाए। और जो हाई कोर्ट में अभी जो मैटर पेंडिंग है, सिटिंग टू मी नेक्स्ट इज माई लीगल एडवाइज़र, चीफ लीगल एडवाइज़र, और ये आपका मैं बता दूं कि आपका जो हमारा जीरो डिलिमिटेशन कमिटी का, आई थिंक ही इज़ द चेयरमैन, ही इज़ ऑल्सो चेयरमैन, ही इज़ हेडिंग द थिंग्स। तो लीगलिटीज़ क्या है क्या नहीं वो बाद में ये बताएंगे अपने तरफ से। मैं पहले अपने पॉइंट्स को ख़त्म कर लूँ, इसके बाद में जो भी लीगल टर्म्स में क्या प्रोस है, कौन से क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, कहाँ पे अटका हुआ है, पूरा एक्सपर्टाइज ये करेंगे। एडवोकेट रिगुम नावम जी है। उसके बाद मैं नंबर 3 पे आती हूँ। हमारा एक बहुत पुराना इशू है स्टेपल वीज़ा इशू, जो कि आज तक सॉल्व हुआ नहीं है। बीच बीच में उसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जाता है, उठाया जाता है, फिर बाद में गायब कर देता है। तो अगर मुझे सचमुच में, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ी हुई व्यक्ति हूँ, मैं ग्राउंड लेवल पे जीने वाली हूँ, और इसीलिए मुझे हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए। तो अगर मुझे MP बनाकर आप लोग भेजते हो पार्लियामेंट हाउस में, तो स्टेपल वीज़ा, जो हमारा चाइनीज़ स्टेपल वीज़ा इशू है अरुणाचल प्रदेश के साथ स्पेशली, इस पर मैं परमानेंट सॉल्यूशन के लिए मैं वहाँ पर इसको रेज करूँगी, मुद्दा उठाऊँगी। नंबर 4 पर है एक्सप्लोरेशन ऑफ टूरिज्म पोटेंशियल इन अरुणाचल प्रदेश। आवर 0, जैसे मैंने कहा, इट इज़ द सेकेंड स्विट्ज़रलैंड, पीपल कंसिडर इट एज ए सेकेंड स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड देखने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके जाते हैं। तो वहाँ पे जितना टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, उतना ही गवर्नमेंट का, वहाँ का कंट्री का, स्टेट का गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो क्यों ना हम जीरो को भी एक ऐसा सुंदर वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनाया जाए, सो डैट कि वर्ल्ड वाइड से लोग आए और हमारा जीरो का ब्यूटी को, हमारा जीरो का वर्जिन ब्यूटी को, सीरीन ब्यूटी को एंजॉय करें, और लोग यहाँ अट्रैक्ट हो। स्पेशली हमारा जस्ट वी आर द तानी क्लान्स, तो अबोतानी का पारंपरिक लाइफ स्टाइल कैसा है, मेरा अबोतानी का बेटा बेटी लोग का, अपातानी आने अबोलो का अपना कुजीन क्या है, खाने का तपियो क्या चीज़ है, पिके पिला क्या चीज़ है, उसको समझने के लिए, जानने के लिए लोगों को हमें यहाँ बुलाना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। तो मैं अगर MP बनती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि टूरिज्म पोटेंशियल को जितना हो सके मेरे लेवल से मैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए कोशिश करूँगी। और टूरिज्म सेक्टर में एज मच ऑफ एज माई कैपेसिटी भारत सरकार से मैं मदद मांगूंगी, स्पेशल पैकेजेस फंड्स जो भी है मैं मांगूंगी कि हमारा टूरिज्म को आगे बढ़ाया जाए। नंबर 5 पर है प्रॉपर स्ट्रीम लाइन ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स एंड कोल माइन सेक्टर। ये भी बहुत ज़रूरी बात है। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको इसको देखना पड़ेगा। और अभी तक हमारा पास में हाइड्रो पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा है, कोल माइन का भी पोटेंशियल है। आप लोगों ने सुना होगा खरसंग का जो कोल माइन है, खरसंग का क्रूड ऑयल डिपोट है, वहाँ से कितना हमको सिर्फ स्टेट को ओनली 12% शेयर मिलता है, बाकी शेयर गवर्नमेंट तो इंडिया का पास में ऑनर है, उस पर हमको बात करना है। उसके बाद में परमानेंट सेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजी इशूज़ ऑफ चकमा एंड हाजोंग। चकमा एंड हाजोंग का इशूज़ पिछले 40 साल से पेंडिंग है अरुणाचल प्रदेश में। नेपाल के देश से उन लोगों को यहाँ रखा गया, तब से लेके आज तक ना उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी उनको इंडियन सिटीजन उन लोगों ने ग्रांट किया होगा,
बट इन अरुणाचल प्रदेश जैसे मैंने बताया, हमारा अरुणाचल में अभी रैपिडली पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम ये है कि चकमा इन हाजों को हम यहाँ का सिटीजन भी नहीं दे सकता है, और उनको भगाने के लिए भी हम ज़बरदस्ती मारपीट नहीं कर सकता है। तो सिर्फ सोल्यूशन भारत सरकार के पास में, भारत सरकार को ही इसका परमानेंट सेटलमेंट निकालना होगा, जिसका इनिशिएशन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे करना होगा, और ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों एमपीज़ को करना होगा, एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को भी इस पर बात करना होगा। नंबर 7 पर है अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 371H। एज यू ऑल आर वेल एजुकेटेड एंड आप लोग अच्छी तरह से काफ़ी तरीके से यू ऑल आर वेल बर्स व्हाट इज आर्टिकल 371H। स्टेट को नेपाल से लेकर के अरुणाचल प्रदेश स्टेट देने के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश स्टेट देते हुए यूनियन टेरिटोरी से जब स्टेट में दिया तो स्टेट के साथ एक आर्टिकल 371H डाल के दिया। तो आर्टिकल 371H क्या कहता है? आर्टिकल 371H कहता है कि इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी या कुछ भी अगर हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी नहीं रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर चला जाता है। गवर्नर ऑफ द स्टेट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट बन जाता है। इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट इज रूलिंग ओवर द स्टेट। तो इस पर हमको इसका अमेंडमेंट चाहिए, इसको हमको भारत सरकार के साथ बात करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में इसको टेबलिंग करना पड़ेगा, सो दैट कि वी द पीपल ऑफ स्टेट वी आर नॉट द ओनर ऑफ आवर ओन लैंड, वी बिकेम जस्ट गेस्ट ऑफ द स्टेट, विच इज़ अ वेरी क्रूशियल इशू, और इस पर बात करना है। तो अगर मैं एमपी बनती हूँ तो इस पर मैं चर्चा करूँगी, जो कि आज तक किसी एमपी ने चर्चा नहीं किया है, और ये ज़रूरी है, हमारा आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका बाद में 8 नंबर पर है वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन विडोज एंड डिपेंडेंट ऑफ एपी। जितना लोग फौजी रिटायर होके आ गए अरुणाचल प्रदेश में, जवान में रिटायर होके आ गया, नाउ दे आर अनएम्प्लॉयड, आइडली सिटिंग इन द होम, दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू। उनके पास में वो हुनर है, वो कला है, वो स्टेट को ले जाके और आगे ले जा सकता है। उसका एक हम टास्क फोर्स तैयार कर सकते हैं अपने स्टेट के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनका हम एक कमिटी बना सकते हैं, उनसे हम एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं, उनके एडवाइस पे हम आगे हमारा जो सिक्योरिटी रीजन है, जहाँ जैसे कि हमारा स्टेट 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज से सराउंडेड है, तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज में हम और ज़्यादा मजबूती से अपना सिक्योरिटी को कैसे टाइट कर सकते हैं, हम विरोधियों से कैसे खुद को बचा सकते हैं, एक सर्विसमैन के सहारे से हम बहुत कुछ मदद ले सकते हैं। तो एक सर्विसमैन के लिए कुछ सोचा जाएगा, उन लोगों से उनका जो पोटेंशियल है, उनका जो क्वालिटी है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसका फ़ायदा स्टेट गवर्नमेंट को उठाना चाहिए, और एज वेल एज उनका लाइफ को भी मेंटेनेंस चाहिए, उनको भी आगे बिजी रखना है। तो उनका फैमिली है, उनका पीछे में उनका किड्स एंड कीन है, उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। एज वेल एज हमारा स्टेट में कितना विडोज है जिसका हस्बैंड नहीं है, बच्चा नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं है, वो बिल्कुल बेसहारा होके जी रहा है। उन अन्य लोगों, उन माता लोगों, उन विडोस लोगों हमें देखभाल करना है। उसके लिए गवर्नमेंट को अपने तरफ से एक स्कीम बनाना पड़ेगा उनके वेलफेयर के लिए, उनका लाइफ में कम से कम सरकार, अगर हम सरकार में है या मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, तो मेरे कंस्टिट्यूंसी के अंदर में कितने विडोस है उसका एक डाटा बना करके, उसके लिए मुझे उनका जो वोकल आर्ट है, वोकल आर्ट को उनको आइडियली फ्री टाइम में यूज़ करने देके, उसके एज वेल एज उनका जो भी एक अपना स्किल है, वोकेशनल जो स्किल है, उस हिसाब से उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसको आगे हम उसको लाइफ को प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी तो देंगे ही देंगे, बट उसको खाली हम बैठने नहीं देंगे, उसको हम एक मजबूती के साथ एक परिवार बना के उसका एक हम, तो इसीलिए विडोज़ के लिए खास एक प्रोविज़न रखा जाएगा। अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनी जाती हूँ तो मेरा एक प्रायोरिटी रहेगा कि मैं अपने माताओं के लिए, विधवा माताओं के लिए कुछ करूँ, क्योंकि एज मेरा भी बैकग्राउंड ऐसा है, मैं भी विधवा माओं के बीच में पली बड़ी हुई हूँ, मेरे भी पिताजी मेरे बचपन में गुजर गए थे, इसलिए मुझे पता है खास करके कि एक विधवा माँ अपना लाइफ कैसे चलाती है। तो इसलिए मेरा प्रोविज़न में ड्रीम नंबर, मेरा विज़न नंबर 8 में एक सर्विसमैन और विडोज़ के लिए मैं यहाँ पे सोच रही हूँ। तो मेरा जो विज़न नंबर 9 है, यहाँ पे वेलफेयर ऑफ आशा एंड आंगनबाड़ी वर्कर्स। तो जितना हमारा आसास है, गांव-गांव में स्लम एरियाज़ में आसास लोग घूमता है, जब भी किसी माँ का, जननी का जब भी डिलीवरी का इश्यूज आता है, आशा लोग को डे एंड नाइट दौड़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है, बस उसके पास में पर्याप्त मात्रा में, सफिशेंट अमाउंट में उसके पास में फैसिलिटीज़ नहीं होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता है, और उसका सैलरी में भी बहुत कटौती है। तो आसास लोग के लिए मुझे खास प्रोविज़न निकालना पड़ेगा एज ए एमपी। उसके बाद में हमारा जो आंगनबाड़ी वर्कर है, उन लोगों के ऊपर में पूरा ये जिम्मेदारी रहता है कि कहीं पर भी माल न्यूट्रिशन ना हो, बच्चों का हेल्थ का पूरा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो जितना आंगनबाड़ी वर्कर्स है, मियरली आई थिंक दे आर गेटिंग ओनली 3 to 4,000 ऑनरेरियम मंथली, तो उससे उसका नहीं होगा। बच्चों का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स
फ्यूचर का, अरुणाचल फ्यूचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथों में है। तो उन लोगों का लिए भी मुझे खास प्रोविज़न रखना पड़ेगा। उनके लिए भी मैं भारत की सरकार से चर्चा करके एज वेल एज राज्य की सरकार से चर्चा करके कुछ उनके लिए भी प्रोविज़न निकालने की मैं सोच रही हूँ। एंड नंबर 10 पर आता है टू टेबलिंग ऑन न्यू पेंशन स्कीम टू ऑल पेंशन स्कीम, जो कि बहुत बहुचर्चित एक आपका ये है ओपीएस एनपीएस। ओपीएस में बहुत कुछ प्रोविजंस थे जो कि एनपीएस में नहीं है। अभी एनपीएस लागू करने के वजह से हमारा जितना भी स्टेट का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है एज वेल एज जो भी सेंट्रल डिपार्टमेंट में जो भी कोई एम्प्लॉय है उन लोगों का बहुत बड़ा ये मुद्दा है, इशू है। और सबका ग्रीवेंसेस ये है कि एनपीएस को हटाया जाए और ओपीएस को फिर से लागू किया जाए। तो इस मुद्दे पर भी मैं भारत की सरकार से बात करूंगी और पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर भी उठाऊंगी। और मैं एज वेल एज मेरा ये है कि जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी कुछ स्टेट्स में लग चुका है, बट अगर मैं एमपी चुनी जाती हूँ तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी। हमारा जो आबोतानी का परंपरा है, जो हमारा एक पारंपरिक लाइफ स्टाइल है, हमारा अपना एक ट्रेडिशनल हमारा कस्टमरी लॉ है, तो कस्टमरी लॉ के हिसाब से हमारा यहाँ चलता है। आप सबको पता है अरुणाचल में हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, यहाँ हमारा कस्टमरी मैरिज एक्ट चलता है। तो इसीलिए यूसीसी कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब पूरा सिविल लॉज जो है ऑल ओवर इंडिया में एक समान होना पड़ेगा। ऐसा होने से हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है। यूसीसी का कहना है कि एडॉप्टेड चाइल्ड को भी और जो हमारा गर्ल चाइल्ड होता है उनको भी पिताजी का जो पैटर्नल प्रॉपर्टी होता है इक्वली शेयर किया जाए। जो कि हमारा आबोतानी लॉ में बेटियों को गहनों से सजाया जाता है, बेटियों को और दामाद को गहनों से प्यार से उपहार से विदा किया जाता है। जो अपना पिताजी का जो लैंडेड प्रॉपर्टी होता है उन पे बेटों का हक होता है। यूसीसी कहता है कि उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इससे इफेक्ट बहुत सारे जनजातियों को पड़ने वाला है। इस पर हमको बहुत अच्छा से मैच्योरिटी के साथ में मैच्योरली हमको इसको डील करना पड़ेगा। और यूसीसी को एटलीस्ट अभी के लिए तो एटलीस्ट नो टू यूसीसी इन आर स्टेट, पर्टिकुलरली अरुणाचल में यूसीसी के लिए अभी जगह नहीं है। हमको अपना पारंपरिक तरीका से जैसा भी हमारा है और हमारा जैसे मैंने अभी कहा सेपरेट हाई कोर्ट होना पड़ेगा। और जो हमारा लीगल सिस्टम है उसमें भी स्पीडी बनाना पड़ेगा। लोअर कोर्ट से लेकर के जेएमएफसी से लेकर के सेशन कोर्ट से लेकर के जितना भी हमारा कोर्ट्स है, हाई कोर्ट है, उन पे भी जल्दी करके हमको सफिशेंट अमाउंट ऑफ जजेस अपॉइंटमेंट करना होगा। सफिशेंट अमाउंट ऑफ हमारा पास में कोर्ट स्टाफ होना होगा, रजिस्ट्रार होना होगा, सृष्टिदार होना होगा। कोर्ट का कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं रहना होगा। सो डेट की जो भी कोई अग्रीव पर्सन है उसको अपना इशू पे मैटर पे जल्दी उसको सोल्यूशन मिल जाए और जल्दी केस डिस्पोज हो जाए। तो इसीलिए हमारा पास में बहुत कुछ चर्चा करना है। यूसीसी तो एटलीस्ट अभी लगने नहीं देना है। इन सारे मुद्दों के साथ में ये 10 पॉइंट्स और मेरा जो भी है ये टोटल मेरा बैकग्राउंड बता दिया है कि जीएसपी एक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है और न्यूली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। फर्स्ट टाइम 2024 में इस पार्टी से हम लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं इलेक्शनिंग प्रोसेस में। तो इसीलिए इस पार्टी का किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज़ अ टोटली इंडिपेंडेंट पार्टी, इट्स एन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, इट्स नथिंग टू डू विथ एनी ऑफ द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए थर्ड फ्रंट। फ्यूचर में इसको थर्ड फ्रंट के रूप में आप कंसिडर कर सकते हो। आफ्टर इलेक्शन व्हाट द रेशियो एंड द जो भी हमको मिलेगा वोटिंग प्रोसेस में ऑल ओवर इंडिया में 19 स्टेट्स में जीएसपी का एक्सपेंशन हुआ है। तो हर स्टेट से, केरला से भी, मध्य प्रदेश से भी, बिहार से भी, असम से भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन में जीएसपी से। तो वन ऑफ देम आई एम ऑल्सो एज ए जीएसपी कैंडिडेट फ्रॉम द अरुणाचल वेस्टर्न पार्लियामेंट। तो ये सारे मेरे पॉइंट्स हैं, मेरे एम्स है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स है और मेरे प्लान्स हैं, मेरे विजन्स हैं। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर मैं इस बार चुनी जाती हूँ तो मैं ये सारी काम करने वाली हूँ और मैं प्रैक्टिकली ही करने वाली हूँ। मुझे वो मतलब थ्योरी में नहीं घूमना है, गोल गोल नहीं घूमना है, लोगों की तरह लोगों को ऐसे जाल में नहीं फंसाना है और स्वीट शुगर कोटेड बात नहीं करना है, लिप सर्विस नहीं देना है। होना नहीं होना भारत की सरकार क्या बोलता है दैट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट फ्रॉम माई पार्ट एज ए वॉइस ऑफ पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इट इज़ माई ड्यूटी टू रेज द वॉइस ऑफ पीपल इन द हाउस ऑफ पीपल। तो लोगों का जो हमारा जो लोअर हाउस है, लोकसभा हाउस है, वहाँ मुझे इन सारे मुद्दों पर
चर्चा करना है और मैं करना चाहती हूँ। इसीलिए आप सब से मेरा स्पेशली 17-0 का आने आबू से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा आने आवा लोग से, मेरा भाई बहन आवाम बारो अवाम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए और अपना विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, अपना सेंस का इस्तेमाल कीजिए और मुझे आप लोग एटलीस्ट दिस टाइम मेरे ऊपर, अपने दीदी, अपने बेटी के ऊपर भरोसा करके मुझे एक बार पार्लियामेंट हाउस के अंदर में एंट्री दिलाइए, क्योंकि एंट्री पास आप लोगों के हाथ में है। मैं कुछ सोच करके भी, चाह करके भी ये सारी चीज़ें बोलना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, बट अनलेस अगर आप लोग मुझे एंट्री कार्ड नहीं दोगे, पास नहीं दोगे, तो मैं पार्लियामेंट में मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। और पार्लियामेंट में एंट्री नहीं मिल के बाहर बैठ के एज ए सिंपल तको शीतल मैं जितना भी बोल लूँ, दैट डजंट कैरी एनी वेटेज, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसीलिए पार्लियामेंट में जा कर के, वहाँ पे बैठ कर के इंडियन गवर्नमेंट के साथ में, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में मुझे जा कर के अकॉर्डिंग टू एज पर प्रोविज़न लेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा जो लीगल राइट्स है, जो ट्राइबल राइट्स है, उसके लिए मुझे फाइट करने दीजिए। मुझे वहाँ भेजिए, कैसे भी करके बाय हुक और क्रुक मुझे भेजिए। एमएलए जरूर हमारा कंस्टिट्यूंसी का अनकॉन्टेस्ट हुआ है 17-0 का, बट एमएलए इज ए स्टेट असेंबली, स्टेट पॉलिटिक्स अलग है, नेशनल पॉलिटिक्स अलग है। लेट मी बी द वॉइस ऑफ आवर पीपल, लेट मी बी द, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दीजिए और मुझे वहाँ भेजिए। नेशनल पॉलिटिक्स में मुझे एक्टिवली काम करने का एक मौका दीजिए। विद इन दिस टेन्योर 24 to 29 अगर मैं काम नहीं कर पाती हूँ तो 29 को मैं आपके सामने एज ए कैंडिडेट दोबारा हाजिर भी नहीं होंगी। और आप मुझे वोट आउट करने के लिए भी आपको पूरा हक है, अधिकार है, आप मुझे वोट आउट कर सकते हो, बट एटलीस्ट एक चांस तो मेरा बनता है कि जो मैं सोच रही हूँ, इतने सालों से, इतने दिनों से मैं देख रही हूँ, सोच रही हूँ, कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं कर रहा है, वो चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग के साथ, आप लोग का लव एंड ब्लेसिंग के साथ में मेरा 17-0 जो मुझे प्लीज़ प्लीज़ पार्लियामेंट हाउस में भेजिए बोल के मैं अपील कर रही हूँ आपके माध्यम से। और जो पर्टिकुलरली स्पेशली जो हमारा जो बर्निंग इशू है, हमारा जो एकदम अभी गला में मछली हड्डी जैसा फंसा हुआ है, हमारा 0 का आदमी लोग पूरा फ्रस्ट्रेशन, सफोकेशन में जी रहा है, डिलिमिटेशन का इशू। तो मैं अपना लीगल एक्सपर्ट्स को मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इस पर प्रॉपर ब्रीफिंग करें कि आप चेयरमैन है ना, डिलिमिटेशन कमेटी का चेयरमैन है, कहाँ तक पहुँचा, क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, ये बताइए। Good morning, people of Arunachal Pradesh, more particularly 17-0 Assembly constituency, and I'm Mr. Regam Navam, presently legal advisor to Toko Sital, who is intending candidate for member of parliament to the West Parliamentary Assembly constituency, and presently I'm holding the post of chairman Arunachal Pradesh Delimitation Demand Committee। तो ये है कि अभी स्पेशली ये 17-0 पोली असेंबली के लिए जो हम लोगों ने बहुत साल से जो डिलिमिटेशन इशू में बात जो चर्चा किया, जो डिमांड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ और स्टेट गवर्नमेंट को भी टाइम एंड अगेन, हमारा 0 असेंबली को 2 असेंबली बनाना है बोल के यहाँ का जितना हमारा नागरिक, सीनियर सिटीजन लोग टाइम एंड अगेन, जो यहाँ का जो सोसाइटी का जो इलाइट ग्रुप है, तन्नी सुकुन दुकुन, उन्होंने बहुत अप्राइज किया। तो पहले जितना लेदर आया, गवर्नमेंट आया, जूत का ऊपर जूत बोलते गया, आज तक वो एक अनसॉल्व इशू रह गया, डिलिमिटेशन इशू जो, इसलिए बहुत दुख है। अभी मैटर लास्ट ईयर हम लोगों ने धरना भी किया, प्रोटेस्ट भी किया कि हमारा डिलिमिटेशन देना है, क्योंकि ये डिलिमिटेशन इशू है। एक तो पार्लियामेंट 2002 को ये एक लॉ है, 2002 को एक लॉ बनाया कि हर सारा देश में एक असेंबली सीट को डिलिमिट करना है, उसका सीट को प्रोपोर्शनेट जो असेंबली को रिप्रेजेंट करने देना है। क्योंकि असेंबली को कोई ऐसा बना के रहा है, कोई चौथा जगह है, कोई को पॉपुलेशन कम है, कोई को पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन जगह चौथा है, ऐसा है। इसलिए इसको डिलिमिट करना है, सिस्टम में लाने के लिए 2002 को एक लॉ बनाया पार्लियामेंट ने। तो पार्लियामेंट का जो एक्ट ऑफ 2000, डिलिमिटेशन एक्ट 2002, उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने। तो सारा भारत में हो गया, तो 4 राज्यों के नहीं हुआ था, मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो ये 4 राज्यों का पेंडिंग था। तो सिंस 2002 अभी तक पेंडिंग है। तो लास्ट टाइम तो क्या किया कि नोटिस 4 स्टेट का जो डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल किया, स्पेशली पिटीशन फाइल किया कि डिलिमिटेशन को हमको दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया 4 स्टेट का राज्य को, गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया।
तो यूनियन गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाया, वो भी उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को भी पार्टी बनाया। तो क्या किया, तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस इशू किया, तो जवाब आता है कि असम गवर्नमेंट तो हम लोग बना देगा, डिलिमिटेशन हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेगा। इन लोगों ने जवाब दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। उसका बाद मणिपुर का इशू था, तो इसमें लोन और कम्युनल टेंशन था, दैट कैन बी एग्जम्प्टेड। और नागालैंड का इशू हो गया, नागालैंड भी अभी कर देगा। लेकिन अरुणाचल गवर्नमेंट ने ये जवाब दिया कि हम लोग 2021 को सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस नहीं कर सका, ये इसमें कोरोना वायरस का कारण सेंसस नहीं कर सका, इसलिए हम डिलिमिटेशन हम लोग 0 को 2 असेंबली नहीं कर सकता है, ऐसा बोला। ईटानगर तो नहीं कर सकता है और कोई कोई जगह को नहीं कर सकता है। तो क्या किया कि असम जब सेंसस नहीं किया, 2021 को सेंसस नहीं किया, असम जब इम्प्लीमेंट कर सकता है तो हमारा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला कि जवाब दीजिए कि आप डिलिमिटेशन क्यों नहीं कर पाया। तो कर नहीं पाया तो हमें एफिडेविट फाइल करता है कि कोरोना का कारण ये सेंसस नहीं कर सका, इसलिए हम लोग इम्प्लीमेंट कर नहीं सकेगा बोल के स्टेट गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल किया। तो अभी मैटर जो रह गया कि अभी असम जब इम्प्लीमेंट कर सका, कोरोना तो सारा भारत में हुआ, सिर्फ अरुणाचल में नहीं हुआ है ना, सेंसस तो सारा भारत में नहीं हुआ है, अरुणाचल में सिर्फ नहीं हुआ है ना। तो वाई लेम एक्सक्यूज दे के 0 को डिप्राइव किया, हमारा ईटानगर को डिप्राइव किया, हमारा कोई जगह में जहाँ जरूरी होना था डिप्राइव किया। तो दिस इज अ लॉ व्हिच इज मेड बाय द पार्लियामेंट दैट हैज बीन वायलेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इसलिए मैं सवाल करता हूँ, इसलिए जुड़ाव का आदमी लोग को आँख खोलना चाहिए। एंड दिस इज द राइट टाइम, व्हेन आयरन इज हॉट देन यू मस्ट हिट टू मेक इट सेफ। अभी आपके लिए जो आवाज़ करेगा पार्लियामेंट में, जो जिसको भेजेगा वो तो आवाज़ करेगा ना, तो इसलिए पार्लियामेंट में ही सिर्फ उसको आवाज़ कर सकता है। आज तक डिलिमिटेशन इशू को कोई पार्लियामेंट में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस ने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गया, उसका बाद बीजेपी भी 15 साल रहा, कोई आवाज़ किया डिलिमिटेशन इशू, कोई भी आवाज़ नहीं किया है। तो इस बार तो शीतल मैडम ने ये इशू लिया कि इस डिलिमिटेशन इशू को हमने नंबर 1 में लिया, तो मैं इनको साथ दे रहा है, तो मैं एडवाइजर बनना शुरू किया है। तो उनका जो अंदर का जो टैलेंट है, नॉलेज है, उसको देखो। ये एक बर्निंग इशू है, लो है, एक लो को वायलेट करने दे के भी हम लोग हला नहीं करता है, हम लोग आवाज़ नहीं करता। इसलिए मैं जीरो वासियों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बार आपका आँख खोलिए, एंड दिस इज द राइट टाइम। बाद में फिर पछताएगा, फिर डिलिमिटेशन इशू पेंडिंग अभी बोलता है कि 2026 का बाद ऑटोमेटिक होगा, नहीं होगा, ये होने वाला नहीं है जब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आवाज़ नहीं किया है। क्योंकि आपको 20 साल से डिप्राइव करके रख दिया, 20 साल। 2022 को लॉ पास किया, डिलिमिटेशन एक्ट 2002, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, 20 साल से कांग्रेस और बीजेपी मिलावटी करके 20 साल दबा के रखा है। तो आप सोचिए, अभी भी बोलता है बीजेपी का साथ, कांग्रेस का साथ बोलता है। अभी आपको जो आपके लिए जो काम करेगा उसी को तो हम भेजना पड़ेगा ना। यू हैव टू सी योर इंटरेस्ट, यू हैव टू सी द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, यू हैव टू सी द इंटरेस्ट ऑफ द द कॉमन पीपल। तो हमारा कानून क्या बोलता है, संविधान में क्या लिखा है, उसको जो इंटरेस्ट उसके लिए सब काम करेगा, उसी को तो हम सपोर्ट करना पड़ेगा ना। इसलिए मैं बीइंग ए चेयरमैन ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी सिंस 2022 से मैं जुड़ा हूँ इस कमेटी में। और हमारा नॉर्थ ईस्ट 4 स्टेट का हमारा पीर कमेटी है, 4 कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में SL फाइल करके रहा। अभी मैटर पेंडिंग है, अभी उस दिन हो जाना था, अभी असेंबली याद हो गया, 2 ML होना था, यहाँ में हो नहीं पाया। अभी एक में अटक के यहाँ आदमी लोग डिससेटिस्फाई, खुश नहीं है। पीपल आर रियली नॉट हैप्पी यहाँ का लोग। हम आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन मैं इन लोग का पल्स को समझता हूँ, इन लोग का दुख दर्द समझता हूँ। इन लोग बहुत तकलीफ है, दिल से खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारा अरुणाचल का जितना या अन्य अब जैसा मैडम ने अभी कहा, यहाँ का जैसा अटा अच्छे पाए, जितना अभी आँख खोलो, और जितना हमारा रिटायर्ड ऑफिसर हम वी वर्क टुगेदर स्टेट डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी में जो सीनियर हमारा एडवाइजर है यहाँ का लोग, हम लोग ने वहाँ न्योकुम लापंग ईटानगर से टेनिस कोर्ट तक पैदल मारा था, इतना तकलीफ था हम लोग। तो उसका बाद हम लोग जो हिजा स्कूल से लेके पैदल मार के पादी हुए स्टेडियम तक पैदल मारा था। वो दिन याद करो आप लोग अभी। नाउ यू मस्ट रियलाइज, रिकॉल, हम लोग कितना तकलीफ किया, चिल्लाया था, गला पार के चिल्लाया था। और हमारे यहाँ का सोसाइटी का हेड इन लोग अभी खोलना है, आँख खोलना है। एक्चुअली ये इशू को अभी टेकअप करना चाहिए, एक इलेक्शन मुद्दा लेना चाहिए था। अभी जो इसको इशू को टेकअप कर देगा, पार्लियामेंट में आवाज़ करेगा, उसको हम लोग वोट मारेगा बोल के आप लोग बोलना चाहिए था। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, दिस इज राइट टाइम एंड सी ऑलरेडी सी एश्योर्ड बिफोर द मीडिया, बिफोर द सोसाइटी, बिफोर द स्टेट दैट ये एक मुद्दा है कि स्टेट का इम्पोर्टेंट इशू है, जो लॉन्ग पेंडिंग जो ये
17-0 का जो पेंडिंग है उसको मैटर को टेकअप करेगा, उसने एश्योर किया, उसने प्रॉमिस किया, और मैं विश्वास करता हूँ पक्का करेगा, ये लेडी करेगा ही करेगा, हम जानते हैं इसको। उसको पार्लियामेंट में भेजिए, उसको पार्लियामेंट में भेजकर उसको आवाज़ करने दीजिए, जैसा कि वहाँ में, जैसा उस जमाना में सुषमा स्वराज आवाज़ करता था, उस जमाने में आपका ये ममता बनर्जी आवाज़ करता। चलो हम भी अरुणाचल से एक लेडी भेज के देते, आवाज़ करने देते ना। अरुणाचल से एक लेडी उतरा है अभी, 4 लाख पॉपुलेशन से अभी यहाँ में 2 लाख लेडी फीमेल पॉपुलेशन है अरुणाचल में। वो 2 लाख फीमेल पॉपुलेशन बहुत मरने से भी जीत जाता है ना ये। तो लेडी लोग भी साथ देना है इसको, और साथ नहीं देने का बजट में कोई बोलता है, और कोई इतना लर्नेड, वेल लर्नेड, उसका जो आउटस्पोकन, उसका नॉलेज, उसका इनहेरेंट नॉलेज, उसको तो हम लोग तारीफ करने का लायक है ना। तो स्टेट के लिए इतना सोच के अपना को दान दे के इतना एक रहा, उसी को बस अटैक करके बस तो शीतल कोई एक पूरा उसका पीछा लगा हुआ है। बहुत दुख है ये। ऐसा कोई लीडर अभी यहाँ में स्टेट में आज तक कोई नारी में ऐसा आया नहीं। मैडम जर्ज में को भी ऐसा करके वोट आउट कर दिया, पूरा इधर से उधर से करके। मैडम वो भी तो बहुत अच्छा एक स्टेट के वोकल आदमी था जर्ज मेटे मैडम, उसको भी कभी उठने नहीं दिया, उसको भी दबा के रहते, डिमोरलाइज करके। बहुत दुख का बात है। इसलिए मैं सोचा कि जो लेडी फर्स्ट होना है आज का समाज में। अभी देखो हमारा इंडियन ओरिजिन हुआ यूएसए में वाइस प्रेसिडेंट बन के बैठा है, तो देखिए ना ये सब। अभी लेडी चांद में उठ गया, अभी चंद्रमा चांद मार्स के लिए अभी टारगेट हो रहा है। तो वाई नॉट हम लोग लेडी को भी एक बार भेज के देखने से अच्छा है बोल के मैंने डिसीजन किया। इसलिए मैं विनती करता हूँ सारा जितना अरुणाचल के वासी हूँ, स्पेशली यहाँ का जीरो का जितना अन्य अब अच्छी पाए, और हमारा बराबर जितना ऑफिसर है, इंजीनियर, डॉक्टर, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, रिटायर्ड टेक्नोक्रेट्स, आइस जितना रिटायर आइस, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस बार तो शीतल का साथ दे, और हम लोग का जो दुख तकलीफ जो हमारा जो डिमांड को पार्लियामेंट में पक्का वो आवाज़ करेंगे और हम लोग के लिए काम करेगा। थैंक यू वेरी मच। सर आप ऑलरेडी ये डिलीमिटेशन डिमांड कमेटी का एज ए चेयरमैन, तो आपने कहा है कि आप अभी जो डिलिमिटेशन का इशू जो अभी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया हुआ है, तो एग्जैक्टली टेक्निकली अभी कौन सा पोजीशन पे अभी डिलिमिटेशन का इशू ये सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा डिटेल बताइए। सुप्रीम कोर्ट में ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर जो अभी ये हियरिंग स्टेज अभी नहीं पहुंचा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को एफिडेविट फाइल के लिए बोला था। तो एफिडेविट फाइल के इन लोग रिप्लाई दिया कि उसमें हम लोग कोरोना का कारण से हम लोग वो स्टेट में पॉपुलेशन सेंसस नहीं कर सका। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये लेम एक्सक्यूज दिया, जूता जवाब दिया। तो उसका बाद वह मैटर जो फिर वो देने के बाद फिर दूसरा स्टेट का फिर इसको भी उसका जवाब भी आना पड़ता है, क्योंकि पिटिशन एसएलपी एक साथ दिया। फिर हम लोगों ने फिर इसको सेपरेट इम्प्लीट करके सेपरेट फाइल किया है, सेपरेट एक इम्प्लीटमेंट ना, सेपरेट से फाइल करना पड़ा, क्योंकि असम वाला तो हो गया, असम गवर्नमेंट ने तो बोल दिया हम लोग कर लिया, क्योंकि जॉइंट फाइल किया था पिटिशन जो ना एसएलपी, तो असम वाला हो गया बोला। तो बाकी जो एसएलपी सेपरेट हम लोग एक पिटिशन एक इम्प्लीट करके सेपरेट से अरुणाचल से फाइल करना उसको कर रहा है अभी। लेकिन अभी इन प्रैक्टिस हो गया ना, अभी इन प्रैक्टिस इसलिए कि इलेक्शन अभी आ गया, अभी इलेक्शन आने के बाद तो हम लोग को जो फाइल किया तो मीनिंगलेस हो गया ना, अभी इन प्रैक्टिस हो गया अभी। इसलिए अभी 2026 का जब हमारा ये किरण सर ने उस दिन बोला 2026 को ऑटोमेटिक होगा, हमारा कहना है कि 2002 से लेके 2026 तक हमारा अधिकार को, हमारा ईटानगर का अधिकार, हमारा अरुणाचल का, हमारा जीरो का अधिकार को क्यों छीना है आप लोग ने? ये जो सवाल हो रहा है ना अभी, उसको आप 15 साल रहा पार्लियामेंट में, आप कैबिनेट रहा, टॉप लेवल लॉ मिनिस्टर रहा, आप अभी मिनिस्टर ऑफ आर्ट एंड साइंस रहा, आपने कभी डिलिमिटेशन इशू को पार्लियामेंट में आवाज़ किया है? नहीं किया। उसके बाद कांग्रेस समय में 2004 से ये प्रियोर टू आफ्टर दैट ऑल्सो जो हमारा ताकाम संजय ने मेंबर पहले कांग्रेस से, जरबाम गामली ने जो MP रहा, तो उस समय में कोई आवाज़ किया? नहीं किया। वो डिलिमिटेशन इशू को तो कोई आवाज़ ही नहीं किया, उसको दबा के रखा गया है। पता नहीं क्या इन लोग क्या नमक खा के दबा के रहा था, ये सवाल है ना। तो मैडम ने इतना अभी हिम्मत से मैं इसको पक्का लूँगा, आदमी को जस्टिस राइट को खट्टल नहीं कर सकता है। संविधान को डिलिमिटेशन कानून है, वो कानून है, सारा भारत के लिए कानून है ना। सारा भारत में जो हो गया अरुणाचल में क्यों नहीं होगा? तो हमारा नेता हमारे लिए काम करेगा बोल के जो भेजा है वो क्यों काम नहीं करता है वहाँ में? ये इशू है ना अभी डिलिमिटेशन इशू, जो अरुणाचल प्रदेश का जो डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी का जो इशू जो
और हमारा तनी सुपु दुकुन भी, कितना बेचारा इन लोग कितना मेहनत करके दिन भर रिसर्च करके ये करता है, कोई ध्यान दिया, उसको ओवरलुक किया। हमेशा इलेक्शन टाइम में सिर्फ वोट मांगने के लिए कांग्रेस बीजेपी आके मांगता है, सिर्फ हमको सपोर्ट करो, सपोर्ट करने के बाद उसके बाद 3 महीने के बाद गायब हो जाता है। व्हाट इज दिस? सर आपका हिसाब से अभी सोल्यूशन क्या होगा? अभी दिल्ली में सोल्यूशन अभी इन प्रैक्टिस हो गया। अभी हम लोग का जो पिटिशन फाइल किया वो भी इन प्रैक्टिस हो गया। हम बोल रहे हैं कि आप 20 साल आदमी का जो राइट को खा दिया आप लोग ने। 20 साल 2002 से जो इम्प्लीमेंट करके 2 असेंबली यहाँ होना था जीरो में, 2 MLA सीट को आप लोग खा दिया, बिक्री किया आप लोग, मैं ये बोल रहा हूँ। उसके बाद वहाँ में ईटानगर में 2 होना था, उसको भी आप लोग ने बर्बाद कर दिया। कहाँ में वहाँ में वहाँ तवांग में भी होना था होगा, वहाँ में दापुरजो में भी होना था होगा, नारी कोई उधर बासर में कहाँ में कहीं भी एनी समवेयर इन विद इन द 60 असेंबली में कहीं भी होना था। जो जिन्होंने पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंट, जो डेवलपमेंट एक साथ जाए, जो जोग्राफिकल पॉपुलेशन बेस करके पैसा बेचता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो, तो उसको तो कोई पॉकेट में ज़्यादा दे रहा है जहाँ पॉपुलेशन नहीं है। यहाँ जैसे कि यहाँ 45,000 यहाँ में, तो 45 तो कोई असेंबली में 7,000 है, वहाँ जैसा मिल रहा है यहाँ भी मिल रहा है, तो यहाँ का आदमी को डिफाइव हो रहा है ना। तो इसको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिलिमिटेशन करने के लिए असेंबली सीट को डिलिमिट, पार्लियामेंट सीट को डिलिमिट करो बोल के कानून बनाया ना 2002 को। एक तो पार्लियामेंट है, उस कानून को यहाँ नज़रअंदाज करके सप्रेस करके रखा गया 20 साल। इसलिए मैं बोल रहा अभी तो डिलिमिटेशन 26 को होगा, बोला वो भी होगा क्या नहीं होगा, ये बात है ना, आने वाला काल को बोल नहीं सकते। लेकिन 20 साल तक आप क्यों चुप रहा था पार्लियामेंट में? सर वो रिजिजू का जो मीडिया का ब्रीफिंग का हिसाब से जो अरुणाचल का जो सीट जो है 60 सीट ना, तो वो सीट नहीं बनने का कारण से ये पेंडिंग पड़ा हुआ, उसका कहने का मतलब वो ऐसा है 60 सीट विद इन द 60 सीट देयर मस्ट बी द लिमिट। वही है रूल जो पार्लियामेंट ने ये बोला कि 60 असेंबली में जिन्हों को देखो ना, कोई हमें पहले जब 60 असेंबली जब हमारा जो ये यूनियन टेरिटरी से जब स्टेट जो टेक ओवर किया था 1987 को, तो 60 असेंबली में जल्दीबाजी में ये लोग कर दिया एडजस्टमेंट, उसी मर्जी कर दिया, जहाँ कोई वो प्रॉपरली नहीं किया, उसमें जो ये आपका स्टेट का जो ये सिस्टम में नहीं किया, जहाँ तक करके रहे। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देख के डिलिमिट करना है। पॉपुलेशन रेशो को देखो, जोग्राफी को देखो, वहाँ का आदमी का जो रहन सहन को देखो, उसका जो ये को देखो, इसीलिए तो लॉ बनाए ना। तो उसका मतलब उस जमाना 1987 में जो असेंबली जो 60 बना के रहा वो तो गलत ढंग में बना के रहा, इसको करेक्ट करो बोल के तो लॉ बनाया ना। जैसा जीरो में 2 असेंबली होना है, ईटानगर में 2 होना है, उसका बाद कोई जगह में 2 होना है, पासीघाट में 2 होना है, एलोंग में 2 होना है, कहीं भी लग सकता है। लेकिन अभी जो हम लोग जो प्रीमा फेसी जो दिखाई देता है जीरो में तो पक्का उसमें 2 होना है, वो तो होना ही है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन देखता है, यहाँ का नेचर देखता है, यहाँ कल्चर देखता है, संस्कृति देखता है, 2 होने का लायक है ये, इसलिए हम लोगों ने फाइट कर दिया इसको। उसका बाद ईटानगर देखो, ईटानगर में कैपिटल है, नाहरलगुन ईटानगर अलग हो सकता है क्योंकि वो अराउंड वहाँ में लैक्स ऑफ पॉपुलेशन है, उसको भी एक बना के रखा। ये सब डिमांड जो 60 का तो 60 रहेगा, लेकिन 60 अंदर में विद इन द 60 अंदर में जो मिलना है उसको तो मिलना है ना, डिप्राइव किया गया ना, ये हम लोग का डिमांड जो। इसलिए इन लोग जान के माने कोई जगह काटेगा, जैसा कि कावी तवांग में मून में काटेगा, तवांग रीजन में एक सीट जाएगा या उस तरफ में एक जगह जाएगा, ये 2 जगह को प्रॉपरली करेगा, तो प्रॉपरली करेगा 2 जगह जाएगा बोल के इसको वो लोग हिम्मत नहीं रह के उन लोग नहीं करके इतना साल तक डिप्राइव करके इन लोग को जिनियन वाला आदमी को डिप्राइव करके रखा गया। मैडम से एक सवाल है कि मैडम आपने कहा है कि ऑलरेडी आप 10 साल भी जिलों में बेच चुके हैं, तो आपका मैनिफेस्टो में भी आपका विजन में भी मेन जो 2 पॉइंट है आपका डिलिमिटेशन और टूरिज्म को लेकर, तो आपका हिसाब से डिलिमिटेशन और टूरिज्म को अलावा इसको छोड़ के तो आप क्या देखते हैं जिला को और क्या डेवलपमेंट करना चाहिए? देखिए माय ब्रदर, टूरिज्म और डिलिमिटेशन ये तो हमारा मतलब शायद नहीं कर सकने वाला 2 इश्यूज हैं। इसके साथ साथ ये तो हमको करना ही है बाय हुक और क्रुक, बाय दिस मीन्स और बाय दैट मीन्स, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, साइड नहीं कर सकते। इसके बाद भी हमारा जीरो खजाना से भरा हुआ है, हमारा जीरो एक ट्रेजर है, जीरो को एक इंटरनेशनल लेवल की एक आइडेंटिफिकेशन मिलनी चाहिए। हमारा जीरो इतना रिच है नेचुरल रिसोर्सेज से, फ्लोरा फोना देखिए यहाँ का, हमारा जीरो में ऑर्गेनिक हम कीवी का इतना अच्छा उत्पादन होता है, ऑर्किड इतना अच्छा यहाँ मिलता है। उसके बाद में हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में ले जा सकते हैं। जीरो को हम एक वर्ल्ड क्लास टॉप एक जैसे मुंबई को इंडिया में
मुंबई जो कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द इंडिया है, इसको हम सेकेंड शंघाई मानते हैं, शंघाई की तरह उसको लोग देखते हैं। उसी तरीके से हमारा जीरो को भी एक वन ऑफ द टॉप मोस्ट सिटी में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर इतना ज़्यादा है। और ऊपर से प्लस पॉइंट हमारा ये है कि जीरो में मैंने जैसे बताया, मैं 10 साल से रह रही हूँ। यहाँ के लोग वेल कल्चर्ड है, वेल एक्सपीरियंस है और हाईली एजुकेटेड होते हैं। सबसे अगर हमारा आबोतानी क्लान में से जो आबोतानी का बच्चा लोग से सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन वाला अगर कोई बेटा बेटी है तो हमारा आबोतानी कम्युनिटी है। तो वो इतना डिसिप्लिन, इतना सिंसियर होते हैं, उनका हॉस्पिटलिटी इतना बढ़िया होता है। जीरो में हमें यहाँ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन भी हमें यहाँ प्रोवाइड करना है। बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमारा ताली वैली हो गया, ताली वैली में कितना कुछ खजाना छुपा हुआ है, वहाँ तक हमको पहुँचना है, उसको एक्सप्लोर करना है। पाइन ग्रुप देखिए कितना खूबसूरत है, नेचुरल पाइन से भरा हुआ है। मैनी थिंग्स विच आर देयर जीरो को आगे बढ़ाने का। ये सारी चीज़ें हम करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के जीरो का एक पहचान होगा। और वर्ल्ड लेवल में, नॉट इंटरनेशनल लेवल, आई एम थिंकिंग ऑफ इट कि इंटरनेशनल लेवल में जीरो का इतना मतलब डिमांड बढ़ेगा कि लोग जीरो आने के लिए सालों साल 12 मंथ्स बुकिंग होना चाहिए। लोगों का ये होना चाहिए कि हमको जीरो जाना है, जीरो इज़ द वन ऑफ द आवर डेस्टिनेशन, वहाँ पहुँचना है बोल के। ये क्रेज़ बढ़ाना है हमको, जीरो को और ज़्यादा ऊपर हाइक लेके जाना है, ये है। और दूसरा यहाँ पे इश्यूज़ है, कुछ इश्यूज़ होता है, हमारा लोकल इश्यूज़ होता है बस्ती, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं हमारा जीरो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया। थोड़ा सा हमारा टाउनशिप को भी हमको पार का तरफ भी एक्सटेंशन करके ले जाना पड़ेगा, उसको और थोड़ा सा हमको स्पेस देना पड़ेगा, नहीं तो ऑक्सीजन पास होना मुश्किल हो रहा है। ये थोड़ा हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, एक सुंदर सा एक्सटेंड टाउन बनाना पड़ेगा जितना जगह हमारा पास बचा हुआ है। और यहाँ पे और छोटा छोटा हमारा गांव में बाउंड्री इशू होता है। और जीरो का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि घर सारा कॉम्पैक्ट होने का वजह से एक घर में आग लग जाने से गलती से ठंडा दिन में हम लोग कोयला वैला यूज़ करते हैं, आग यूज़ करते हैं, फायर यूज़, पूरा बस्ती को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस पर भी हमको थोड़ा सा नहीं, बहुत ही सीरियसली इस पर भी वर्कआउट करना ज़रूरी है, काम करना है। तो यहाँ का जो भी लोकल लीडर होगा, जो भी लोकल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको एज वेल एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिल के इस पर हमको बहुत ज़्यादा काम करना है। तो इसलिए मैं एक अपील करती हूँ जीरो वासियों से। अभी जो हमारा सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगी आते आगे आपा जी को कि अनकॉन्टेस्टेड विदाउट एनी कंट्रोवर्सी आप MLA बन चुके हैं। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। एज वेल एज आते आपा निम्गो कॉन्ग्रेचुलेशन देते हुए आपसे मेरा रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ आप MLA बन चुके हो, असेंबली हाउस में आपको एंट्री मिल चुका है, तो आपको MLA मिल गया बोल के आप किसी भी कंपल्शन में, किसी भी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेटस में आप जा कर के MP का साथ में कोई गलती मत कीजिए। MP आप अपना विवेक से चुनिए। आप भी बहुत ही क्वालिफाइड एक रिटायर्ड ऑफिसर हो, क्लास 1 ऑफिसर हो, आप क्लास 1 सिटीजन हो स्टेट के, आपको खुद पता है हमारा जीरो का लोकल इशूज़ क्या है और हम जीरो में कितना प्रॉब्लम के साथ रह रहे हैं। तो इसलिए आपको एक अच्छा वाला, एक मतलब प्रेजेंटेबल MP को यहाँ से भेजना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ओपनली इस मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि MP बनाने के लिए जो हमारा जीरो का जो सिटीजन है, जो यहाँ का जो एकदम अपना एडल्ट फ्रेंचाइजी को जो एक्टिवेट करने जा रहा है, उसको कम से कम आप किसी बाउंडेशन में कंपल मत कीजिए ना, कंपल्शन में उसको लेके मत आइए, कॉम्पेल मत कीजिए। ये आते आपा को रिक्वेस्ट है। साथ ही साथ आते रुचो आते रुबिया, आप दोनों लाइफ टाइम एक कांग्रेस के लिए काम करता रहा, एक BJP के लिए काम करता रहा। इस बार मैं आपका छोटा बहन का बा मान्यो सिंह रिक्वेस्ट कर रहा है कि फर्स्ट टाइम अपना स्टेट के लिए काम कीजिए, अपना जीरो के लिए काम कीजिए, अपना स्टेट का लीडर बनाइए, अपना जीरो का प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला लीडर बनाइए, अपना बहन को सपोर्ट कीजिए, ब्लेसिंग दीजिए। ये पार्टी का लीडर बन के पार्टी के लिए आप लोगों ने बहुत काम किया है। अभी कम से कम इस बार अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारा लोअर सुबनसिरी के लिए काम कीजिए, हमारा जीरो के लिए काम कीजिए, अपना बहन पे भरोसा कीजिए, क्योंकि आप लोग तो मुझे क्लोजली जानते हो। आतेला जी आप भी जानते हो, भाभी कुइया आप भी जानते हो, और आता जानिया आप भी जानते हो, सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से परिचित नहीं हूँ, बहुत अच्छी तरीके से परिचित हूँ। मेरा नेचर, मेरा स्वभाव, मेरा डिटर्मिनेशन, मेरा हार्ड वर्किंग, मेरा जो एक हार्ड लेबर, जो मेरा एक ये है डेडिकेशन है, वो सब आप लोग वाकिफ़ हो। तो मैं खुले आम सबके सामने मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मुझे इस बार काम करने का एक बार मौका दीजिए। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरा भैया लोग आप लोग काम नहीं किया है, आप लोग भी अपना लेवल में बहुत काम किया, लेकिन आप लोग आराम से बता सकते हो कि एक मतलब
बॉन्डेड वाला पॉलिटिकल पार्टी में रहने से आप चाह कर के भी काम नहीं कर पाता है। बट दिस टाइम ये इतना अच्छा सुनहरा मौका है कि हम अपना रीजनल, अपना इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी से मैं स्टैंड कर रही हूँ, तो कम से कम इसमें पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर मत डालिए। अपने लोगों को फ्री विल में जाके वोटिंग करने दीजिए, किसी को भी मतलब ज़बरदस्ती मत कीजिए, और सकने से अपना ब्लेसिंग को, आशीर्वाद को दीजिए, और यंग जनरेशन को गाइड कीजिए। और भी बहुत सारा इशूज़ है हमारा जीरो में, जो कि अगर मुझे इलेक्ट किया जाता है, आफ्टर इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो पहला विजिट में जीरो करूँगी, और तब हम बैठ करके डिटेल्स में बात करेंगे कि हमारा जीरो का उसका प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा, प्रॉपर ड्राइंग करना पड़ेगा कि जीरो को हम कितना खूबसूरत और कितना प्रॉब्लम्स को, जो अभी हमारा छोटा छोटा प्रॉब्लम्स है, उसको भी हम कैसे करके एक सोल्यूशन की तरफ ले जा सकते हैं। ये मेरा बहुत सपना है, ड्रीम है, क्योंकि मैं इसी डिस्ट्रिक्ट की बेटी हूँ, और यहाँ से मेरा जन्म हुआ है, यहाँ से सब कुछ हुआ है, मेरा पहचान ही है। मेरा पूरा अभी भी मेरा ड्राइविंग लाइसेंस में भी लोअर सुबनसिरी का ही ड्राइविंग लाइसेंस चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ मेरा डॉक्यूमेंटेशन में, क्लास 10-12 पास में भी मेरा लोअर सुबनसिरी का ही एड्रेस है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, यहाँ रही हूँ, यहाँ के प्रॉब्लम से मैं वाकिफ़ हूँ, तो यहाँ का प्रॉब्लम्स को मुझसे बेहतर कोई और वहाँ से पैराशूट लैंडिंग कैंडिडेट कभी नहीं समझेगा। लेट मी बी द प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन, दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, मुझे सॉल्यूशन लेके आने दीजिए। सो इट्स इन माई हाईली अपील कि प्लीज़ 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 एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल आर कंसिडरिंग एज ए वोटर, बट आई एम नॉट कंसिडरिंग एज ए वोटर। मैं आप लोगों को वोटर के रूप में नहीं देख रही हूँ, मैं आप लोगों को एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में देख रही हूँ, एक कंट्रीब्यूटर के रूप में देख रही हूँ। प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिए एक रिफॉर्मेशन के लिए। यू आर नॉट ए मियर वोटर, यू आर ए सोसाइटी बिल्डर। सो लेट अस बी टुगेदर फॉर ए हेल्दी नेशन, फॉर ए हेल्दी फ्यूचर, और परमानेंट वंस फॉर ऑल जो हमारा प्रॉब्लम है, हेडेक है, चलो इसको सोल्यूशन करके देखते हैं। लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दीजिए। बस आप लोगों का प्यार और ब्लेसिंग को मुझे चाहिए, सपोर्ट को चाहिए, वोटिंग मैंडेट को चाहिए। बस मुझे मैंडेट कीजिए और मुझे भेजिए पार्लियामेंट के अंदर। भेजने के बाद देन यू सी एंड यू, आई एम श्योर, मैं आप लोगों को इतना मैं अश्योर कर रही हूँ कि यू पीपल विल सी द difference between those old peoples, those who were representing us since from many 20-35 years, और मुझ में आप एक अलग चीज़ को महसूस करेंगे, देखेंगे, क्योंकि मैं रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन हूँ। मुझे बातें करने का या ऐसे बकवास करने का शौक़ नहीं है, मुझे काम करना है। इसीलिए एक छोटा सा एग्जाम्पलरी, जब मैंने करप्शन का इशू रेज किया, स्टेट लेवल में बैठ के कितना साल रेज किया, नोबडी लिसन मी, नोबडी नोटिस मी, देन आई टुक द ड्रास्टिक डिसीजन टू पुट मार्च फ्रॉम अरुणाचल टू दिल्ली, एंड दैट आई डन। मैंने किया, लोगों को करके दिखाया, बात को अपना जंतर मंतर में जाके 8 months आई वॉज देयर, मैंने सारा इशूज़ को वहाँ पे प्लेस किया। इवन आई हैड गॉन टू द मिस्टर किरण रिजिजू जी ऑल्सो व्हेन ही वाज द लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, वहाँ पर भी जाके मेमोरेंडम सबमिट किया। बट व्हाट ही हैज़ डन, ही सेड कि यू पीपल आर रियल हीरो, आई सैल्यूट यू, ग्रैंड सैल्यूट फॉर यू ऑल, यू आर रेजिंग द करप्शन इशू। येस, देयर इज़ ए करप्शन, बहुत ज़्यादा जगह में करप्शन है, नॉट ओनली इन अरुणाचल, इवन इन इंडिया, इवन इन अब्रॉड करप्शन बहुत ज़्यादा है, बट उसको कोई भी नहीं उठाता है। बट आप लोगों ने उठाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सैल्यूट करता हूँ। आई विल टेक अप दिस इशू इन द पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड, और मैं पहला इंसान बनूंगा जो करप्शन हटाने के लिए मैं लीड करूंगा बोला। बट उन्होंने बोला कि आपने जो मेमोरेंडम दिया है इसको मैं रद्दी के भाव नहीं फेंकूंगा, मैं माइनेटली एक एक करके पढ़ूंगा और उस पर काम करूंगा बोला। बट आफ्टर 2 months में उनसे सुनती हूँ कि दिस इज़ द वर्क ऑफ कोर्ट, लेट द कोर्ट डिसाइड, कोर्ट को काम करने दो, मैं कैसे ये सब करेगा, मैं तो सिर्फ स्कीम भेजना, सेंक्शन करवा के यहाँ भेजना, फंड्स भेजना मेरा ड्यूटी है, उसका अलावा कौन करप्शन कर रहा है नहीं कर रहा है वो कोर्ट को डिसाइड करने दो बोलते हैं। ऐसे पलटी मार देता है वो, ऐसे कनिंग, चतुर, चालाक और बहुत ज़्यादा मतलब चमेलियन जैसा गीदड़ बंकी जो रंग बदलने वाला, रूप बदलने वाला लीडर से एटलीस्ट इस बार होशियार हो जाइए, भी अवेयर हो जाइए। लेट अस बी टुगेदर। हम लोग बहुत मतलब सिंपल लोग हैं, गरीब लोग हैं, मेहनती लोग हैं, हम यहाँ में जीरो में रहते हैं, एक ही हमारा पास ज़मीन इतना कम है, एक ही मिट्टी में हम धान भी बोते हैं, फिशी कल्चर भी करते हैं, फार्मिंग भी करते हैं, और उसी का आली में लाई पत्ता भी लगाते हैं, मरुआ भी लगाते हैं। हमारे पास में बहुत कम स्पेशियस में भी हम कोशिश करते हैं कि हम अपना लाइफ को एक सही तरीके से गुजारा करें। तो हम ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, और हमें इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लेट अस बी टुगेदर
और मुझे एक मौका दीजिए, चांस दीजिए प्लीज़। मैं घर घर जाके जीरो में गांव-गांव जाके कैंपेनिंग करने का मेरा पास में टाइम नहीं है, अपने बातों को बताने का टाइम नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यहाँ अपील करके आज मैं यहाँ से लोअर सुबनसिरी से निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे वेस्ट कामेंग जाना है, तवांग जाना है, लोअर सियांग जाना है, पाकी केसंग जाना है, पापुम पारे जाना है। मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर वेटिंग फॉर मी ओनली, दे वांट टू सी मी बाय फेस टू फेस। तो इसीलिए मैं एक बहुत बड़ी अपील के साथ में मैं यहाँ से जा रही हूँ। और आप लोगों से भी, मीडिया फ्रेटर्निटी से, मेरे जितने भी बहुमूल्य आप लोग मीडिया फ्रेंड्स हो, बिकॉज यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए, सेकुलरिज्म को मेंटेन रखने के लिए प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मदद कीजिए और मेरा ये मैसेज को जीरो वासियों के घर घर तक पहुँचाइएगा बोल के ये मेरा अपील है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।